students, here we are once again with JPIC Digital Study. In this video, we are going to learn about the chapter Women's Education Part 2nd. In the last video, we have learned to know how S. Radhakrishnan had described about the modern education system, how the status of the woman become up. पिछले वीडियो में हमने राधाकृष्णन के विचार जाने जो उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के बारे में दिए थे। आइए उनके विचारों से संबंधित अन्य बातों को इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। लेट्स सी आवर टेक्स्ट बुक एंड लिसन केयरफुली। There are ever so many thrilling stories in our classics which will instill into us great moral strength, which will lay down for us the lines on which we have to conduct ourselves. Give us good women, we will give a great civilization. Give us good mothers, we will have a great nation. What we learn, it reflects in our moral sense. It was the realization of the great educationist, the great writer S. Radhakrishnan. श्री राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना था कि जो कुछ हम सीखते जानते हैं वह हमारे नैतिक मूल्यों में प्रदर्शित होता है, हमारे व्यवहार में दिखाई पड़ता है। So he wants to tell us, he asked us, give me the good woman, I will give you the good civilization, and if you give me the good mothers, I will give you the good of नेशन। वो कहते थे कि आप हमें श्रेष्ठ महिलाएं दीजिए, हम आपको श्रेष्ठ सभ्यता देंगे। उनका मानना था कि कोई भी सभ्यता का विकास तभी हो सकता है जब वहाँ की नारियाँ उन्नतशील स्वभाव वाली होंगी, अच्छे विचारों वाली होंगी, और अगर माताएं श्रेष्ठ होंगी तो निश्चित रूप से पूरा राष्ट्र श्रेष्ठ होगा। उनका मानना था कि जिस देश की, जिस राष्ट्र की महिलाएं सद्विचारों, अच्छे विचारों वाली हैं, वह राष्ट्र भी श्रेष्ठता की श्रेणी में अग्रणी होता है, श्रेष्ठता की श्रेणी में आगे होता है। When you talk about education, you have several aims in view. Give the people, those who are taught knowledge of the world in which they live, science, history and geography, enable you to get that knowledge. He tells that when we are getting the knowledge, when we are going to study, we have different views, we have many views that what should we have to do. We are going to get the knowledge of history, geography and everything. वो कहते हैं कि जब भी हम शिक्षा लेने के बारे में सोचते हैं, you have several aims in view, तो आपके मन में बहुत सारे लक्ष्य होते हैं। If the people, those who are taught knowledge of the world in which they live, मीन्स लोगों को जिसे आप सिखा रहे हैं उन्हें आप विश्व में जो विश्व का ज्ञान है उसे आप उन्हें देना चाहते हैं, और उन ज्ञान के अंदर जिन विषयों को आप उन्हें सिखाना चाहते हैं जैसे विज्ञान, इतिहास और भूगोल है, इनेबल यू टू गेट नॉलेज, यह सभी आपको ज्ञान प्रदान करने में सफल बनाते हैं। You also train the people to acquire some technical skill by which they can earn a livelihood, and with the knowledge of history, geography and science, it's math, etc. You want to make skill them as they can get their livelihood, as they can get their breads. Means आप लोगों को कुछ किसी के क्षेत्र में इतना कुशल बनाना चाहते हैं जिसकी वजह से वह अपनी जीविकोपार्जन कर सके, अपने बच्चों का और अपना भरण पोषण भी कर सके। These are still accepted the world over as the objects of education, knowledge of the world in which you live, and technical skill by which you can earn a livelihood. It means to say by the writer, we are gaining the education to increase our knowledge, but we should have to skill us to get our livelihood. वह कहते थे कि हम शिक्षा लेते हैं किस लिए? शिक्षा इसलिए लेते हैं कि हमारे ज्ञान का संवर्धन, हमारे मन मस्तिष्क का विकास हो, हमारा चारित्रिक निर्माण हो। लेकिन हम कुशल क्यों बनते हैं? हम कुशल इसलिए बनते हैं जिससे कि हम अपनी जीविका को कमा सकें, हम कुछ धन अर्जन कर सकें,
but what is there specific about the kind of education imparted in the institution of our country? We have heard that the chief purpose of education is not merely the acquiring of skill or information, but the initiation into a higher life. Initiation into a world which transcends the world of space and time, though the latter informs and animates the former. That has been the main purpose of education. For some centuries we neglected our women folk. Our tradition, however, has been somewhat different. But today in the institution, what is the main aim of education? The main aim of education in this very time is to make our thinking power higher, to gain the money, to gain the livelihood, and to make ourselves as higher position as we can. राधा कृष्णन जी कहते हैं कि आजकल जो संस्थानों का मुख्य उद्देश्य है वह क्या है कि हमें अपने को केवल ज्ञान प्रदान कराना ही नहीं, बल्कि अपने को उच्चतम स्तर पर पहुंचाना हमारी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बन गया है। और केवल अपने आप को कुशल बनाना ही नहीं, बल्कि अपने जीवन क्षेत्र में अपने को उच्चतर स्थान प्रदान कराना ही हमारे शिक्षा का उद्देश्य है। एंड वर्ल्ड ट्रांसेंड्स द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम। यद्यपि बाद वाली वस्तु यानी जो बाद की चीजें वो पहले के बारे में हमें सूचना प्रोवाइड करती हैं, फिर भी जो यह भौतिक संसार है यह हमें प्रेरणा देता है। यहाँ मौजूद चीजें जो हैं हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अग्रसर हों। दैट हैज बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, और यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। एंड फॉर सम सेंचुरीज वी नेग्लेक्टेड आवर वुमेन folk। वह कहते हैं कि कुछ शताब्दियों तक हमने अपनी महिलाओं को इनसे दूर रखा, वह महिलाएं अधीनता में रहीं। आवर ट्रेडिशन हाउएवर हैज बीन समवॉट डिफरेंट। जबकि हमारी जो प्रथाएं, हमारी जो पुराने रिवाज हैं इससे बिल्कुल अलग हैं। पुरा कल्पेश नारी नाम मंदिरा वंदना निश्चित अध्यापना वेदानां गायत्री वैकेनम तथा। वह कहते हैं कि पुराने समय में, मैंने कहने का मतलब कि पुराने समय में स्त्रियों द्वारा मंदिरों में पूजा किया जाना। पुरा कल्पेश नारीणाम मंदिराम वंदना निश्चित, यानी पुराने समय में महिलाओं का मंदिरों में पूजन अर्चन करना वह निश्चित था। अध्यापना नक वेदानां गायत्री मंत्र तथा, और वेदों का पठन पाठन और गायत्री मंत्र पढ़ना उनके लिए निर्धारित था। वह ऐसा किया करती थी। पहले के समय में महिलाओं को इतना दबा कर नहीं रखा जाता था, उन्हें इन सब के लिए छूट मिलती थी। इन एंशिएंट टाइम्स आवर वुमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म फॉर देम। And he also said, and at the ancient time, in Vedic era, the women also got the उपनयन ceremony. महिलाओं को का भी उपनयन संस्कार होता था पहले के समय में। They were entitled to a study of the Vedas, और उन्हें भी वेदों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता था। वेदों को पढ़ने का उन्हें भी अधिकार प्राप्त था। They were also entitled to the chanting of the गायत्री जप, और उन्हें गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए भी अधिकार प्राप्त था। All these things were open to our women, और यह सभी चीजें हमारी महिलाओं के लिए, हमारे देश की महिलाओं के लिए, इन सब के लिए छूट होनी चाहिए। बट आवर सिविलाइजेशन बिकेम रेस्टेड, लेकिन हमारी जो सभ्यता थी कुछ समय के लिए वह पराधीन हो गई। मीन्स महिलाओं को वह स्थान नहीं मिला जो प्राचीन समय में मिलता रहा है। एंड वन ऑफ द मेन साइंस ऑफ द डिके ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। और हमारी सभ्यता के पतन का उस बीच में सबसे बड़ा कारण यही था कि हमने महिलाओं को पूर्ण रूप से नकार दिया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस, थ्रू द एक्सर्शन ऑफ महात्मा गांधी, a revolution has affected our country and women are coming into their own. And after the independence, when the India got freedom,
with the help of, with the thinking of Mahatma Gandhi, the women had got the better position in the society, and they also were going to get the knowledge as well as the people, as the men were getting. और जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ, तो भारत देश के आज़ाद होने के बाद, महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद, महात्मा गांधी के प्रयासों के बाद, महिलाओं को भी शिक्षा के लिए वही स्थान मिलने लगा जो पुरुषों को मिलता है। और आज के समय में महिलाएं हर एक क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिला करके चल रही हैं, वह भी उसी तरह का ज्ञान प्राप्त कर रही हैं जिस तरह हमारे समाज का पुरुष ज्ञान ले रहा है और समाज को ऊंचा उठाने में वह लगी हुई हैं। डियर स्टूडेंट्स, इट्स योर लेसन, रीड द chapter with the help of this video. We will meet with the next chapter in the next video. Till then, thanks.